Hello programmers, welcome to my YouTube channel Techie Projects. So in this video I will show you the online voting system using machine learning. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी तुम्हारा प्रोजेक्ट एक प्रॉपर VS कोड में या कोई एडिटर में ओपन कर लेना सो दैट यू विल हैव कंप्लीट कोड. ओके. सो in terms of technology, okay, so we have used certain technologies like first of all कि हमारा जो मेन लैंग्वेज है दैट इज पाइथन लैंग्वेज. ओके. And for front end we have used normal HTML CSS. Okay. And for the front end and back end integration, see HTML is nothing but कि उसमें हमारा सिर्फ UI बनेगा, करेक्ट. And back end is something जहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे, मशीन लर्निंग कोड लिखेंगे, राइट. But we need something to get integrated, right. For the integration we have used Django framework. ओके. Django बेसिकली इसमें हमारे रूट्स बनते हैं. आई एक्सप्लेन यू कि इसमें रूट्स वगैरह कैसे बनते हैं एंड विल कवर इट. ओके. And for the algorithm part we have used dleep algorithm plus CNN. Okay. Dleep is basically, if you google it, what is dleep algorithm. Dleep algorithm basically help to identify the landmarks of face. See, let's see, this is the face, right? So it is helping out to identify the landmarks with their value with the proper face structure. Okay, this is the Dleep algorithm. So we have integrated with CNN. Okay. And for the uniqueness we have also integrated the blockchain. Okay. It is somewhat integrated, but I suggest ki do not say during demonstration bolna mat ki you have used blockchain, else they will ask you bunch of thousands of questions. Okay. So that's why I'll prefer, if they ask ki what you have used for uniqueness, so there you can say you have used blockchain somewhat, like not fully blockchain, but yeah, somewhat we have used their technique, hashing technique, so that we are using. Okay. So now let's cover one by one. Okay. First we'll cover the Django, what exactly a Django is. Okay. So basically, see, if I run the project, okay, let me run the project. To run the project you need to go inside your project folder. Here you need to open your command prompt like this, and here you have to type the command python manage.py run server. Okay. And you have to hit enter. Once you do that it will load the libraries, and it will take time depending upon your laptop performance. Okay. And it will give the URL like this. Okay. Once you got this URL, that means your project is running successfully. Okay. So if you see in this project, there are certain routes are defined. Okay. Just like this the route. Okay. If I log out the user, so it got redirected to account, right. Similarly, if I go to register, then it got redirected to register. So like this routes has been defined. Okay. In the project. Okay. So these routes are defined in the URLs. Okay. So basically Django follows MVC architecture, model view controller architecture pattern. Okay. So in the model view controller what basically happen, see, it follows MVC. Okay. Models means that is something database related. Okay. Where we have to define classes for the database purpose. Okay. So whatever class we define, it create the tables or respective columns for that particular uh, class. Okay. Just like let's suppose, see, there's a project structure. So in the project structure there is a account folder, right. We have account root. Okay. So account root has certain URLs. Okay. So all URLs are defined here. Okay. And there is a view.py file. So view is nothing but this view, which basically consists the functions. If suppose someone is coming to this URL, means this is the controller. So let's suppose someone is coming to this URL, कोई अगर registration account or registration URL पे आता है, so what has to do कि क्या करना है system को, so that is defined inside this view.py file. So as you can see, account of registration function हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं मॉडल्स. ओके. एंड उनको प्रोसेस कर रहे हैं कि इफ इट इज पोस्ट मेथड, देन हम इमेजेस सेव कर रहे हैं, एंड देन वी आर मेकिंग द सेविंग द पर्टिकुलर मॉडल मतलब जो भी इनपुट डेटा आएगा यूजर से हम उसको सेव करवा रहे हैं. ओके. तो यूजर फॉर्म इज हमारा मॉडल. ओके. इफ यू गो इनसाइड द यूजर मॉडल, सो एज यू कैन सी यहाँ पे
सारे फॉर्म्स डिफाइंड है। यहाँ पे एक मॉडल डॉट पी वाई फाइल भी है ये वाली। सो यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे पूरे क्लासेस डिफाइंड है, कि एक क्लास ओके, और उसके रिलेटेड उसकी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब उसके कॉलम्स डेटाबेस के, वो सारे यहाँ पर डिफाइंड है ओके, इस तरीके से। सो ये हर एक के लिए रूट है, जैसे ये अकाउंट का हो गया, एक ये ई वोटिंग करके है, तो ये वोटिंग रिलेटेड यू आर एल से यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। ये वाला भी एक यू आर एल है, तो यू आर दिस वन इज मेन ओके। ये अकाउंट ई वोटिंग वगैरह तो इस यूजफुल, बट जो हमारा सबसे मेन है विच इज वोटिंग डॉट वोटिंग वाला फोल्डर ओके। सो इनसाइड दिस वोटिंग फोल्डर देर आर सर्टेन यू आर एल्स आर देयर ओके, जो कि मेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ओके। सो इस तरीके से हमने डेटाबेस के लिए हमने एसक्यूएल लाइट यूज़ किया है, ठीक है। नॉर्मल इनबिल्ट डेटाबेस है Django का, so that we have used okay। So this is about the Django and front end and back end part okay। Now let's come to the dlib and cnn okay। सो बेसिकली dlib हमने क्यों चूज़ किया है फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए। तो देखो फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमने क्या स्टेप्स है, सबसे पहले तो हम कैप्चर कर रहे हैं इमेज, है ना, पहली स्टेप हमारी ये होगी। सेकेंड हम स्टेप ये करते हैं कि इमेज में से वी यूज़ टू आइडेंटिफाई फेस डिटेक्शन, वी यूज़ टू अप्लाई फेस डिटेक्शन, और फेस डिटेक्शन के लिए हमने यूज़ किया फेस नेट। FaceNet is a very accurate algorithm in neural network which basically predict face from image in very accurate manner. Okay. थर्ड इज डीलिप। सो डीलिप से हमने क्या किया है, फेस डिटेक्ट करने के बाद फेस के लैंडमार्क्स हमने आइडेंटिफाई करे, ठीक है। एंड वी हैव स्टोर दोस लैंडमार्क्स, जितनी भी इमेजेस आ रही है सबके लैंडमार्क्स हमने स्टोर किए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड अ CNN algorithm न्यूरल नेटवर्क, जहाँ पे हमने उन लैंडमार्क्स से मॉडल ट्रेन किया है ओके। सो दिस प्रोसेस कीप्स गोइंग, जब भी तुम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो तो मॉडल ये स्टेप्स अल्गोरिदम की परफॉर्म करता है और नया मॉडल जनरेट करता है और सेव करता है ओके, ताकि जब भी हम रियल टाइम प्रिडिक्शन करें, ये होगा हमारा ट्रेनिंग कोड की ट्रेनिंग की स्टेप्स ओके। और जब भी हम रियल टाइम पे परफॉर्म कर रहे होते हैं ओके, तो उस टाइम पे भी सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे इतना है कि यहाँ पर अभी CNN ये लोड नहीं होता है, यहाँ पे होती है प्रिडिक्शन की, जो हमारा ऑलरेडी बना बुना मॉडल है CNN का वो हम लोड करते हैं, फिर CNN उस पर प्रिडिक्शन करता है, ठीक है, और आउटपुट शो करता है। इस तरीके से हमारा वर्क फ्लो है फॉर रियल टाइम ओके। सो ये हमारा मतलब पर्पस स्टेप्स है ओके। जैसे अगर हम लोग कोड में अगर जाएंगे तो मेनली जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे अगर मैं रजिस्ट्रेशन पे जाऊँ, जो मैंने आपको बताया था है ना, रजिस्ट्रेशन अकाउंट रजिस्ट्रेशन, तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन में अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, यूज़र फॉर्म और वोटर फॉर्म, मतलब एक दो हमारे डेटाबेस मॉडल है जहाँ पे हम लोग को डिटेल सेव करनी होती है, तो आप डेटाबेस में डिटेल सेव कर रहे हैं ओके। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूज़र की यूनिक फ़ोल्डर बना रहे हैं, यूज़र के नाम से, उसका जो नाम रहेगा उस नाम से एक सिस्टम में फ़ोल्डर बना रहे हैं ताकि हम इमेजेस सेव कर सकें, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग वन बाय वन, जैसे हम लोगों ने 10 इमेजेस का काउंट रखा है राइट, तो हम वन बाय वन इमेजेस को लेके सेव कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेव करने के बाद हमने एक थ्रेड कॉल की है, थ्रेड, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग यूज़ की है, ट्रेनर डॉट एनकोड। अगर तुम इस ट्रेनर डॉट एनकोड में जाओगे, ये फाइल बाहर मिल जाएगी, तो ये मेन हमारा कोड है ट्रेनिंग का, ये जो है ना ट्रेनिंग वाला कोड, ये वाला, दिस वन, क्या दिस वन ओके। सो दिस कोड इज हेयर ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है। और ये सारे रिस्पेक्टिव और लाइब्रेरीज है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, CV2, ओपन CV, पिकल, जैंगो ओके। हम लोगों ने देखो ये एनकोड मेथड कॉल की है, तो एनकोड मेथड बेसिकली कर क्या रही है, सबसे पहले तो वो लिस्ट ऑफ इमेजेस ले रही है, जितने भी फोल्डर में इमेजेस है सब लोड कर रही है, सब लोड करने के बाद उनको फिर RGB में कन्वर्ट कर रही है, RGB में कन्वर्ट करने के बाद उसके फेस लैंडमार्क्स निकाल रही है, जो डीलीव एल्गोरिथम है ना, वो इनसाइड दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी इज अवेलेबल ओके। एंड वो निकालने के बाद हम उसको एनकोड कर रहे हैं नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। एनकोड करने के बाद हम उसको एक मॉडल में सेव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और हमारा वो मॉडल फिर पर्टिकुलर इस लोकेशन पे सेव हो जाता है, अगर तुम जाओगे मॉडल तो एनकोडिंग डॉट पिकल में जाके वो सेव हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब अगर अपन
वोटिंग करते हैं, ठीक है? तो वोटिंग वाला यूआरएल तुमको यहाँ पे मिलेगा, वोटिंग वाले फ़ोल्डर में वोटिंग यूआरएल्स, बुलेट गेट वोट और बुलेट फेच डेटाबेस, ठीक है? वोट आई थिंक ये है, ये नहीं है, सबमिट बुलेट ये वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखो क्या कर रहे हैं, जब भी यूज़र सबमिट कर रहा है वोट को, वोट सबमिट करने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कैंडिडेट चेकर, चेक इज़ वोटर वैलिड, ओके? देखो एक फंक्शन बनाया है मैंने, एक कैंडिडेट चेकर नाम की एक फ़ाइल बाहर ही मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे तो हम लोग पहले यूज़र का ईमेल एड्रेस ले रहे हैं, यूज़र का ईमेल एड्रेस क्या है? क्योंकि हमारा ईमेल एड्रेस से हम लोग वैलिडेशन कर रहे हैं कि उसका ईमेल एड्रेस प्रॉपर है या नहीं, ठीक है? ये मीन्स उसके फेस के रिकॉग्नाइजेशन से रिकॉग्नाइज होने के बाद जो भी हमारा यूज़र नेम, यूज़र ये ईमेल मतलब तुम समझ कर लो फ़ोल्डर नेम, ओके? तो फ़ोल्डर नेम से जो रिकॉग्नाइज्ड यूज़र है उसका मैच कर रहे हो, ओके? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैमरा स्टार्ट कर रहे हैं, कैमरा स्टार्ट करने के बाद एक कंटिन्यूसली लूप चल रहा है जो कि कंटिन्यूसली यूज़र की फ्रेम लेगा, कितना? अराउंड कांस्टेंट में डिफाइन है, कांस्टेंट डॉट पी में। तो देखो मिनिमम काउंट चेकर, हाँ 40 इमेजेस लेगा, ठीक है? 40 इमेजेस लेगा और उसमें से मिनिमम 10 काउंट, मतलब एटलीस्ट 10 फ्रेम तो भी डिटेक्ट होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है? एंड वो होने के बाद देखो वोटर रिकॉग्नाइजेशन चेक, ये एक फंक्शन बनाया है मैंने, ठीक है? इसके अगर अंदर तुम जाओगे ये भी वोटर रिकॉग्नाइजेशन फाइल बाहर मिल जाएगी, तो इसमें देखो चेक हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो हमने मॉडल लोड कर लिया, ठीक है? इसमें मॉडल लोड करने के बाद हमारी जो भी रिस्पेक्टिव फाइल है, हर कास्केड या फिर जो भी मॉडल फाइल है वो सब लोड हो रही है, ठीक है? कास्केड मॉडल एक्सेट्रा। फिर जब भी यूज़र क्या नया लैंडमार्क्स मिलता है, वो लैंडमार्क्स से हमारी जो एग्जिस्टिंग लैंडमार्क्स है उन दोनों को मैच करवा रहे हैं, और मैच करने के बाद अगर नेम फाउंड होता है तो हम उसको एज अ प्रिडिक्शन लेंगे, अदरवाइज उसको अननोन बोलेंगे। और अगर ये प्रिडिक्शन 10 टाइम्स के ऊपर फाउंड होता है दैट मीन्स वो यूज़र रियल है, अगर वो रियल है तो हम उसको अलाउ कर रहे हैं वोटिंग के लिए, अदरवाइज नहीं कर रहे, ओके? तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस फ्लो ऑफ चल रहा है उसमें, ठीक है? सो अभी नाउ बैक टू योर क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज, और देखो मैंने आर्किटेक्चर तो तुम्हें अभी बता दिया पूरा, है ना? सिक्योरिटी यूनिकनेस, हाँ। तो देखो बेसिकली इसके लिए हम लोग ने ब्लॉकचेन वगैरह यूज़ किया, यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट सिर्फ हैशिंग टेक्निक यूज़ की है। जैसे कि अगर मैं डी बी डॉट एसक्यूएल में जाऊँगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर आता है एसक्यूएल लाइट ओपनर, ओके? वो जैसे मैं अभी तुम्हारे सामने ही डाउनलोड कर लेता हूँ, एसक्यूएल लाइट बी ये वाला टीबी ब्राउज़र एसक्यूएलाइट ओपनर, इसको तुम डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में, मैं भी कर लेता हूँ। आई थिंक आई ऑलरेडी हैव इट। सो इसको तुम सिंपल राइट क्लिक कर सकते हो, इस फाइल पे तुम डाउनलोड करने के बाद यू कैन जस्ट क्लिक टू शो मोर एंड ओपन विथ, ओके? एंड ओपन विथ करने के बाद जहाँ पर भी तुम इंस्टॉल करोगे वो डीबी ब्राउज़र, उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? सिलेक्ट कर, या फिर तुम ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना व्यूवर तो मिल जाएगा बहुत सारे, ठीक है? तो जैसे कि देखोगे अगर आप वोटर टेउट्स, आई सजेस्ट कि मत ही जाओ इसके ब्लॉकचेन की इसमें, और तुम सिंपल बोल सकते हो कि हमने हर एक यूज़र की यूनिक आईडी बनाई है, यूनिक आईडी को एज अ प्राइमरी की लिया है। जैसे कि देखो यूज़र टेबल कौन सा है, हाँ, ये यूज़र टेबल है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक आईडी को प्राइमरी की लिया है, और वो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिकनेस क्रिएट कर देता है हमारे हर एक यूज़र के लिए। सो वी नो नीड टू कॉन्फ़िगर मच थिंग, ओके? क्योंकि ज़्यादा ब्लॉकचेन का यूज़ हुआ भी नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन बोलोगे फँस जाओगे, ठीक है? तो बोल सकते हो सिंपल हमने प्राइमरी की लिए इसकी यूज़ की है, जो कि यूनिकनेस सेट कर रही है हमारे प्रोजेक्ट में एज अ आईडी, ठीक है? CNN, देखो CNN फेस रिकॉग्नाइजेशन फॉर फेस, देखो फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए CNN भी नहीं यूज़ किया हमने, मेनली यूज़ किया डिलीव एल्गोरिथम फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी से। क्योंकि वाई, क्योंकि देखो हर एक का फेस स्ट्रक्चर अलग होता है ना? तो हर एक का फेस स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से डिलीव उसके प्रॉपर पॉइंट्स निकाल के देता है, वो प्रॉपर पॉइंट्स निकालने की वजह से हमारा थोड़ा मॉडल एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है?
देखो हमने कोई डेटा सेट यूज़ नहीं किया ट्रेन करने के लिए, हमने डेटा सेट बनाया है। जो भी हम फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन जो यूज़र फेसेस वाले फ़ोल्डर में सेव होते हैं, ये हमारा डेटा सेट बनते जाता है, ठीक है? तो जब भी हम नया रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो डेटा सेट बढ़ जाता है, तो दैट्स व्हाई उसको ट्रेन करना ज़रूरी है। देखो ये हमने लैंडमार्क्स इसीलिए निकाले ताकि ये इश्यू आ सकता है लाइटिंग का, वेरिएशन का, है ना? क्योंकि अब फेस स्ट्रक्चर का सबका सेम रह सकता है। पर लाइटिंग्स की वजह से सिमिलर भी फेसेस लग सकते हैं ना, तो इसलिए डीलिप से हमने लैंडमार्क्स निकाले ताकि यूनिक यूनिकनेस रहे, ठीक है। मैट्रिक्स वगैरह अगर तुम्हें निकालना है तो सिंपल यू कैन फाइंड कि डीलिप एक्यूरेसी मैट्रिक्स, ओके, तो उसका जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज द सेम, ओके। इसका जो भी मैट्रिक्स आता है ना डीलिप का, यू कैन पुट इट इनटू योर रिपोर्ट, ओके, दैट इज द सेम, क्योंकि एट द एंड हमारा एंड बैकबोन वही है, ओके। देखो मैंने बताया ना कि हम 40 फ्रेम ले रहे हैं, 40 फ्रेम्स में से अगर 10 टाइम डिटेक्ट होता है और बाकी टाइम डिटेक्ट नहीं होता है तो हम उसको एज अ फेल कंसिडर कर रहे हैं। ट्रेनिंग का हाइपर पैरामीटर का उतना कुछ इशू है ही नहीं, क्योंकि हमारा मॉडल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओवर फिटिंग भी उसमें आएंगी नहीं, ओके। और इम्बैलेंस डेटा भी आएगा नहीं, क्योंकि हम सबका फेस स्ट्रक्चर अलग रहता है और हमको सबका यूनिक फोल्डर मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली, ओके। हाँ, हमको प्री प्रोसेसिंग के लिए इतना कुछ हमने अप्लाई नहीं किया है। सिंपल आरजीबी इमेज ली है उसको, ठीक है, और उसको सिंपल डिलीप को पास कर दिया। डिलीप एल्गोरिदम ऑलरेडी इंटरनल प्री प्रोसेसिंग करता है इमेजेस को, सो यू कैन ऑल्सो मेंशन जो भी डिलीप एल्गोरिदम प्री प्रोसेसिंग कर रहा है, यू कैन ऑल्सो मेंशन कि वो भी हमारी है, ओके। इसमें फेल हो जाएगा सिस्टम, ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पूरे लैंडमार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ये भी बता दिया मैंने तुमको, ये भी मैंने तुमको बता दिया कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये भी मैंने बताया 40 फ्रेम्स वाला, वही है आंसर इसका। ब्लॉकचेन वाला छोड़ दो, सिंपल बोलो प्राइमरी की यूज़ की डेटाबेस में, ओके। अगर तुम मॉडल्स में जाओगे, अगर कोड में जाते हो, ये मॉडल्स फाइल में, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे आईडी करके होगा, मतलब देखो इसमें देखो जैंगो में इनबिल्ट फ्रेमवर्क यूज़ किया हमने जैंगो की, ओके, डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए। तो उसमें आईडी भी बनानी नहीं पड़ती है, वो खुद मेंटेन करता है यूनिकनेस, ठीक है, क्योंकि वो एस ओ आर एम टूल है, ओके, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल, ओके। तो ये सारी चीज़ें वो खुद हैंडल करता है, इसीलिए तो बना है, ठीक है। सो देखो यही सारे आर्किटेक्चर है तुम्हारे प्रोजेक्ट के। अगर इसमें तुमको कुछ स्टिल डाउट रहता है तो मेरे को भेजो तुम मैसेज, ओके। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Thank you.